carbohydrate is over: sucrose, maltose, lactose, glucose, fructose. Now in protein, what was over till yesterday? Definition of protein is over, source of protein is over. Then after that, word comes from which Greek word, that is over. Then after, what is the monomer of protein, that is amino acid. Types of amino acid, that is alpha, beta and gamma amino acid is over. Then after, acidic, basic and neutral, this is amino acid is over. Then after, essential and non-essential amino acid is over. This whole part is over. Then after, properties of amino acid is over. Physical properties. A specific term is Jupiter ion, that is over yesterday. Why amino acids are amphoteric in nature, that is over. Then after, next one, the alpha amino acids means some other properties of amino acid, that is except glycine, all the amino acids are optically active, and all of them are having capital D and capital L form. Only glycine is not having capital D and capital L form. This is the information for MCQs type question. In this, in amino acid, the capital D and capital L form, the capital D and capital L form is on the basis of position of H2, कि ये NH2 का position क्या है. NH2 is left side or NH2 is right side. Then after, next was there, that is peptide linkage. Peptide linkage, that I informed you yesterday कि what is peptide linkage, where it is present, ये कहाँ present होता है, and which two monomers are combined with this. And then after, next was there, that is what is the meaning of dipeptide, tri, tetra, penta, hexa, octa, nona, deca, poly and polypeptide and protein. What is difference in polypeptide and protein, that is over yesterday. Which protein in human body is present which is having less than 100 amino acid, that is over. How many amino acids are present in insulin, that is over. Now how many peptide bonds are present in, how many peptide bonds are present in dipeptide, tripeptide, tetrapeptide, कितने peptide bond present होते हैं, and how many amino acids are present. Two different questions. कितने amino acid होते हैं, linkage होते हैं, ये दो अलग अलग है. If you will see here it is written, अगर आप देख रहे हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 2 peptide linkage, 3 amino acid in tripeptide. ट्राइपेप्टाइड में 3 एमिनो एसिड है, 2 पेप्टाइड लिंकेज है. तो पेप्टाइड लिंकेज कितने होते हैं ये अलग क्वेश्चन है, और एमिनो एसिड. Now then, yesterday I had stopped here that the classification of protein. Now we are going to discuss the classification of protein. अब हम डिस्कस करते जा रहे हैं प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, that how many types of proteins are there. So first of all, on the basis of molecule, shape उनका कैसा होता है. On this basis, the protein is of 2 type. प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं. On the basis of molecular shape, shape के basis पे protein is of 2 type: fibrous protein and globular protein. Fibrous protein and globular protein. This is again very important topic for 1 mark. First of all, पहला इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन पूछता है वो सबसे जरूरी है. यही क्वेश्चन बार बार पूछता है कि which one of these 2 protein is soluble in water and which one of these 2 is insoluble in water. So globular protein is soluble in water and fibrous protein is insoluble in water. Remember this, globular protein is soluble in water and fibrous protein is insoluble in water. पहला ये क्वेश्चन पूछता है. सेकंड, definition, what are fibrous protein, what are globular protein. So those protein in which the polypeptide chains run parallel and held together by hydrogen bond, disulfide bond,
मीन्स ऐसे प्रोटीन जिसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, मीन्स एमिनो एसिड की जो चेन होती है वो पैरेलली एक दूसरे के होते हैं एंड दे बोथ आर कंबाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, या तो उनके में हाइड्रोजन बॉन्ड हो या डाइसल्फाइड बॉन्ड हो या दोनों हो, then that are called fibrous protein. Thread like, fibrous, fiber like means thread like structure, means straight structure. And globular protein means that protein in which polypeptide chains are coils, जिसमें polypeptide chain coil हो जाते हैं, coiled and form spherical structure, और coil हो करके spherical structure में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कह रहा है कि एक धागा ले लीजिए, उस धागे को बिल्कुल उस धागे को खूब राउंड 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 घुमा करके एक छोटा सा बॉल बना लीजिए धागे का, सो दैट विल बी ग्लोब्यूलर। सो बोथ आर सेम बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप कि फाइब्रस प्रोटीन इज दैट in which the protein chain is straight, that is the polypeptide chains are run parallel to each other, and globular protein is that in which polypeptide chains are coiled and give a spherical type structure, globe spherical structure, and that's why इट इज सॉल्युबल, इसीलिए सॉल्युबल होता है, बिकॉज व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर देन इट गोइंग टू बी ओपन, तब ये ओपन होता है। और वैसे भी स्फेरिकल शेप में छोटे छोटे इतनी लंबी चेंज हो गई वो छोटे से बॉल में कन्वर्ट हो गई, सो इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इसमें 2-3 चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, 2-3 चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है और वो भी स्ट्रेट चेन है, सो इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। नाउ सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर के बेसिस पे और मे बी ग्लोब्यूलर और फाइब्रस के बेसिस पे सेपरेट करने को कहता है। सो कीरेटिन नाम सुनते होंगे आपको, जो शैम्पू के एड्स आते हैं, क्लिनिक प्लस हो गया, चाहे आपका जो है कई शैम्पू के एड आते हैं तो उसमें कहता है कीरेटिन, कीरेटिन प्रोटीन, हेयर प्रोटीन। सो हेयर में जो प्रोटीन होता है हमारे हेयर में, और अगर ये शिप्स का शिप की हेयर से वूल बनता है तो वूल में, इन सब में जो प्रोटीन होता है दैट इज कीरेटिन, इट इज प्लस प्रोटीन। मायोसिन नाम सुने होंगे क्लास 10th में, दैट इज इन मसल्स, ठीक है। मायोसिन, एक्टिन, एक्टिन मायोसिन, वहां पे एक्टोमायोसिन बॉन्ड बनता है आप सेल्स मूवमेंट के लिए। सो मायोसिन इज प्रेजेंट इन मसल्स, मसल्स में जो प्रोटीन होता है, जो मसल्स बॉडी बिल्डर लोग मसल्स बनाते हैं, सो उसके लिए जो प्रोटीन शेक वगैरह लेते हैं वो मायोसिन हो गया। सो एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। नेक्स्ट इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, these are water soluble protein, that is globular protein। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो भी 2 years बैक यूटी में आई थिंक क्वेश्चन था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, इनमें से कौन वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, कीरेटिन, मायोसिन और एल्ब्यूमिन लिखा था। तो आपको याद रखना है इन योर एनसीईआरटी ओनली दीज 4 एग्जांपल्स आर गिवन, तो आपको ये 4 एग्जांपल याद रखना है। आउट ऑफ दीज 4 2 आर वाटर सॉल्युबल, 2 आर वाटर इनसॉल्युबल, 2 आर फाइब्रस, 2 आर ग्लोब्यूलर, किसी भी तरीके से नाउ फिर उसी को फिर से यहाँ पे कुछ डिफरेंट टर्म्स में आपको फिर से बताया जा रहा है कि फाइब्रस और ग्लोब्यूलर में डिफरेंस क्या है। सो फाइब्रस आपको कहा गया है कि ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है इसलिए डिसॉल्व नहीं हो पाता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो वीक होता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वीक होती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल और एक्स्ट्रा दिए गए हैं, but in your NCERT only 2 example is given, कीरेटिन एंड मायोसिन। सो आप इन दो को बिल्कुल याद किए रहिएगा। नाउ नेक्स्ट सेकेंड इज मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन,
structure of protein, or you can say how many types of protein are there on the basis of structure. वो shape था कि shape straight chain है, यहाँ पे बता रहा है स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो क्वार्टरनरी फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री प्रोटीन कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी द प्रोटीन्स आर ऑफ 4 टाइप: सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी. Protein is that protein in which the polypeptide chain is in straight form. Amino acids are attached back to back in their specific sequence. Amino acid एक दूसरे से बैक टू बैक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होते हैं उनका सीक्वेंस है उसमें अटैच्ड होते हैं एंड फॉर्म द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर. स्ट्रेट चेन, that straight chained polypeptide or protein is called primary structure of protein. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और सेकेंड देखिए ये एमिनो एसिड बैक टू बैक बस अरेंज हुए हैं. सो दिस इज प्राइमरी. हम आपको एक फाइनल दिखा रहे हैं, आपको बुक में जो दिया है उसके बेसिस पे. देखिए प्राइमरी ये है, फिर जब ये क्वाइलिंग शुरू होती है तो सेकेंडरी, और ज्यादा क्वाइलिंग हो जाती है तो उसी को टर्शियरी कहते हैं, और जब बिल्कुल क्वाइल्ड हो जाता है ये स्फेरिकल मतलब ये आपका ग्लोब्यूलर पार्ट आ गया तब इसको कहा था क्वार्टरनरी. ये आपके एनसीईआरटी का है. प्राइमरी मींस व्हेन ऑल द एमिनो एसिड्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म अ स्ट्रेट चेन. सेकेंडरी व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन अंडरगो क्वाइलिंग. Coiling is not very high. Small coiling is there, small amount of coiling is there. Then secondary, when coiling is going to be increased, जैसे ही coiling और बढ़ती जाएगी, then it is tertiary. And when coiling is at its highest level and it form the sphere bladder like structure, then that is called quaternary. इसमें जो फर्स्ट वाला है इसको फाइब्रस कहा जा रहा है, जो लास्ट वाला था इसी को ग्लोब्यूलर कहा जा रहा था. लेकिन यहाँ पे है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी. तो अभी बात कर रहे प्राइमरी की. ठीक है, प्राइमरी. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? सो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज that structure of protein in which the protein is present in straight chain form in which the amino acids are attached back to back in their specific sequence. Another information: any change in this primary structure, that is sequence or of amino acid, create different प्रोटीन. मतलब कह रहा है कि अगर इसके स्ट्रक्चर में हम एक भी प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो वो प्रोटीन का नया प्रोटीन बन जाता है. दैट विल बी नॉट प्रीवियस प्रोटीन. जैसे आपको बताया गया कि इंसुलिन, तो इंसुलिन में अगर ये पैटर्न है तो इसमें से एक भी हटाए या एक भी आगे पीछे की तो दैट विल बी नॉट इंसुलिन. तब वो इंसुलिन नहीं रहेगा, दैट विल बी समथिंग अनदर प्रोटीन. वो कुछ और प्रोटीन बन जाएगा एंड दैट विल कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. जिसके कारण प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है. तो ईच एंड एवरी एमिनो एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक भी एमिनो एसिड सीक्वेंस से गायब हुआ या एक भी एमिनो एसिड एक्स्ट्रा सीक्वेंस में आया देन दैट प्रोटीन विल बी डिफरेंट प्रोटीन. नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बस होगा क्या, प्रोटीन था दैट स्टार्ट टू क्वाइल, वो क्या हो जाएगा, क्वाइल हो जाएगा. व्हेन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मींस द व्हेन द चेन ऑफ दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट क्वाइलिंग. ठीक है, और इट स्टार्ट टू अरेंज द डिफरेंट मैनर, then that is called secondary structure of protein. Secondary structure of protein is present in two: alpha helix and beta pleated. अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड. सेकेंडरी स्ट्रक्चर का दो टाइप है, अल्फा हेलिक्स मैनर, बीटा मैनर. अल्फा मैनर में
देखिए अल्फा हेलिक्स मैनर में द चेन विल बी स्टार्ट टू क्वाइल, चेन क्वाइल होने लगेगा हेलिकल मैनर में, दिस इज कॉल्ड हेलिकल मैनर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स। एंड बीटा प्लेटेड में चेन विल स्टार्ट टू अरेंज इन द प्लेट लाइक फॉर्म, चेन प्लेट लाइक फॉर्म में क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, दैट इज प्लेट लाइक फॉर्म, प्लेट की तरह एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे फिर से देखिए आपका जो है अल्फा हेलिक्स मीन्स दैट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, दैट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर क्वाइल इन हेलिक्स पैटर्न, जिसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो हेलिक्स पैटर्न में क्वाइल होती है, दैट इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिक्स form of secondary structure of protein. And when the polypeptide chains are arranged to form the sheet-like structure, जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं वो सीट के फॉर्म में, सीट की तरह साइड बाय साइड अरेंज होती हैं, देन फॉर्म द सीट लाइक स्ट्रक्चर, देन दैट इज कॉल्ड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नाउ अनदर इंफॉर्मेशन, वो ये पूछेगा कि which bonds are present in secondary structure of protein, then in secondary structure of protein hydrogen bond is present, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो एट दिस टर्निंग, जहां पे ये क्वाइलिंग हो रही है, जैसे अगर हम एक स्ट्रेट थ्रेड लें और थ्रेड को क्वाइल करें तो जैसे छोड़ेंगे ये क्वाइलिंग फिर खुल जाएगी, लेकिन ये क्वाइलिंग खुलती नहीं है, मीन्स समथिंग इज हियर विच बाइंड द चेन्स, कुछ ऐसा है जो चेन्स को क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, उसके क्वाइलिंग को बाइंड कर रहा है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज सी dotted bond formed by hydrogen, so this is hydrogen bond, and hydrogen bond is formed between the CO, ठीक है, CO means oxygen of CO and hydrogen of NH, hydrogen of NH, एक के NH के हाइड्रोजन से दूसरे एमिनो एसिड का CO, आपको कल बताया गया था कि पेप्टाइड लिंकेज जो होता है, पेप्टाइड लिंकेज जो होता है, पेप्टाइड लिंकेज जो होता है दैट इज, वो होता क्या है, CONH, इस CONH से दो एमिनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। अब जो पेप्टाइड लिंकेज बना है, इसी पेप्टाइड लिंकेज के क्वाइलिंग के समय, पेप्टाइड लिंकेज के किसी एक पेप्टाइड लिंकेज के ऑक्सीजन दूसरे टर्न के पेप्टाइड लिंकेज के NH के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड दिस क्वाइलिंग इज नॉट अंडरगो अनक्वाइल, मीन्स जैसे ये क्वाइल होगा जो इसको इस कंडीशन में रोके रहेगा, पकड़े रहेगा, अदरवाइज इट विल, आपको एक, जैसे आपके घर पे कर्टन है, कर्टन को घुमा दीजिए फिर छोड़ दीजिए तो खुल जाएगा कर्टन, तो उसी तरह से जब ये चेन क्वाइल हो रही है तो चेन को जैसे ही छोड़ेंगे ये अनक्वाइलिंग हो जाएगी, खुल जाएगा, तो विच इज द बॉन्ड देयर विच हेल्ड द, यही क्वेश्चन पूछता है। सी alpha helix most of the common, and which a polypeptide chain form all possible hydrogen bond by twisting into right hand screw or helix with the NH group of amino acid residue hydrogen bond to the, ठीक है,
CO of adjacent. ये पूछता है कि which bond is present or hold the two turns of alpha helix structure of protein. कौन सा बॉन्ड है जो दो टर्न को आपस में होल्ड किए रहता है? That is hydrogen bond. So see one more information. Now one more information is here. In primary structure of protein which bond is present? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में केवल बॉन्ड होता है, एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं तो दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड होता है, डोंट से कि कोई बॉन्ड नहीं होता है. इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ओनली पेप्टाइड बॉन्ड is present between the amino acids to form the chain in straight manner, and in secondary structure of protein two bonds are present. One is peptide bond that is between the amino acid to form the chain, and second is hydrogen bond. Hydrogen bond is present between the turns of coiling of alpha helix structure and between the sheets of, ठीक है, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर. बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर के बीच में भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर के बीच में भी यू कैन सी हियर हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना हुआ है. ये सारा हाइड्रोजन बॉन्ड है. दिस इज वन चेन, दिस इज अनदर चेन एंड टू चेन्स आर, ठीक है, connect with each other to form the sheet like structure that is due to hydrogen bond. H of NH and C means O of Cu are combined through hydrogen bond. So in secondary structure peptide linkage is present as well as hydrogen linkage is present. अगर टर्न में पूछेगा कि टर्न पे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में टर्न पे कौन सा बॉन्ड है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. और अगर पूछेगा बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में सीट लाइक स्ट्रक्चर में दो चेन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, दैट इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस इज अबाउट द सेकेंडरी. सेकेंडरी में इतना पूछता है. सेकेंडरी दो टाइप का है. हेलिकल मैनर में वो हमारी जो चेन थी वो हेलिकल मैनर में चेंज हुई है, क्वाइल हुई है, कि सीट के फॉर्म में. नाउ नेक्स्ट टर्शियरी स्ट्रक्चर. तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में मोर क्वाइलिंग, ठीक है. देखिए व्हेन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ protein or secondary protein undergo more coiling, more folding, then the formed structure is called tertiary structure of protein. तब जो बनता है that is called tertiary structure of protein. अब tertiary structure of protein में जो और coiling हुई, how that be stable? वो कैसे stable होगा? The more coiling is due to presence of some more bond. यानी tertiary structure में कौन कौन से bond होते हैं? देखिए the main force which stabilize the secondary and tertiary structure of protein is hydrogen bond. तो secondary structure में hydrogen bond था, लेकिन tertiary में डाइसल्फाइड भी होता है, वंडर वॉल भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है. So secondary structure आपने देखा कि that was having the two bond. One is peptide linkage which form the protein chain, peptide chain. Another is responsible for stability of structure of protein, that is hydrogen bond. And in tertiary structure of protein which bonds are present? तो पेप्टाइड लिंकेज तो इसमें भी रहेगा, एमिनो एसिड अटैच है. इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वंडर वॉल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इसमें यही क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द राइट द नेम ऑफ द फोर्सेस व्हिच आर responsible for stability of third degree structure tertiary structure of protein. वो कौन से फोर्स हैं जो टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं? सो दैट आर हाइड्रोजन फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये चार में से कुछ भी हो सकता है. दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मींस और मोर कॉम्प्लिकेटेड. एंड क्वार्टरनरी लास्ट वन, फिर से वही हो गया कि जब और ज्यादा क्वाइलिंग होगी then finally the coiling will be in the form of sphere or bladder like structure, that is called quaternary structure of protein, the most complicated or complex structure of protein. In this which bonds are present? Same.
जो थर्ड वाले में था। तो फर्स्ट वाले में केवल पेप्टाइड लिंकेज है, सेकंड वाले में पेप्टाइड लिंकेज एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के रिस्पॉन्सिबल कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के लिए कौन कौन से बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो पहले सिंपल है, वही प्रोटीन की चेन है। पहले एमिनो एसिड अरेंज हुए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, फिर क्वाइलिंग या प्लेटिंग शुरू हुई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना, फिर उसके बाद और ज्यादा क्वाइलिंग हुई तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बना, और सबसे कॉम्प्लेक्स क्वाइलिंग हो गई तब वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन गया। So these are the four structures of protein or protein on the basis of different structures, four types के, primary, secondary, tertiary and quaternary. Another information, जितना complex structure उतना ज्यादा water soluble, जितनी less complexity उतना less soluble in water, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। मींस प्राइमरी इज insoluble and quaternary is most soluble form of protein. Primary protein is insoluble in water, that you have seen fibrous protein, and quaternary protein is soluble in water, that is the globular protein. Means जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर बढ़ेगा solubility will be increase. Now see, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही। नाउ नेक्स्ट, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट मेकअप स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसे बनता है? व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, 4 स्टेज कौन कौन से हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग के प्रोसेस क्या है? वही आपका प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, यही सब आपका है। हाउ प्रोटीन्स आर फॉर्म, प्रोटीन कैसे बनता है? तो आपको बताया गया एमिनो एसिड बनाते हैं, डाइपेप्टाइड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नोना, डेका, देन पॉली इज नाउ फॉर्म द प्रोटीन। डीएनए इज प्रोटीन और नॉट? सो कह रहा है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आप देख लीजिएगा। डीएनए, ठीक है, is often associated with protein in the nucleus called histone, but DNA is not a protein. DNA खुद प्रोटीन नहीं है, that is deoxyribose nucleic acid, वो तो नाम ही बता रहा है कि वो नहीं है। Now अब अगला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज हियर इन दिस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन। नेटिव प्रोटीन, नेटिव प्रोटीन क्या होता है? सो द यूनिक 3-dimensional, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच फाउंड नेचुरली इन बायोलॉजिकल सिस्टम। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन नेचुरली पाए जाते हैं, जिसको हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है, द प्रोटीन विच फाउंड in biological system with a unique 3-dimensional structure and biological activity, जिसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और जिसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, that protein is called native protein. Native protein means the natural protein, you can say. And now another, some of the processes are here by which we can change the, ठीक है, नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मिल्क, मिल्क, मिल्क में, ठीक है, मिल्क में लैक्टीन, लैक्टीन, पहले तो लैक्टोज शुगर होता है और लैक्टीन प्रोटीन होता है। वही मिल्क जब आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। वही मिल्क आपका जो चीज है पनीर में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको कहा जाता है कि पनीर खाने से ज्यादा प्रोटीन मिलता है, तो वो प्रोटीनेशियस पार्ट हो जाता है। ठीक है, मिल्क है तो कार्बोहाइड्रेट पार्ट ज्यादा है उसमें। कर्ड हो गया तो लैक्टिक एसिड आ गया, चीज में कन्वर्ट हो गया तो प्रोटीनेशियस हो गया। मीन्स देयर आर सम
condition by which we can change the nature, biological activity and structure of protein. This is called denaturation of protein. इसी को हम कहते हैं denaturation of protein. Means a protein is in its native form is subjected to physical change. उसमें कुछ हम physical change कर दे, उसको temperature provide कर दे या कुछ chemical उसमें add कर दे, उसका pH value change कर दे, physical या chemical change, then its structure becomes disturbed. इसका structure disturb हो जाता है and it lose its biological activity. ये अपने biological activity को खो देता है. जैसे अब एक simple सा example दीजिए, आपको कितना भी बीमारी वगैरह हो, मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स आर सेइंग कि दूध आप पी सकते हैं, बट दही कहते हैं नहीं पी सकते. आपको सर्दी जुकाम हुआ है, दूध कहेंगे पीजिए, दही कहेंगे मत खाइए. दोनों तो सेम चीज है, बिकॉज दूध जो प्रोटीन है दैट इज नॉट इन, ठीक है, कर्ड, वो दही में नहीं है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी चेंज, वो चेंज हो गया. आपसे कहेंगे पनीर मत खाइए, दूध पीजिए लेकिन पनीर मत खाइए, तुलसी से बना हुआ, तो दैट इज ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. कि जो प्रोटीन दूध में है दैट इज नेचुरल प्रोटीन. पनीर नेचर में नहीं आता है, पनीर को बनाया जाता है, दही नेचर में नहीं आता, लेकिन दूध नेचुरली अकरिंग है, ठीक है. तो दूध में जो नेटिव प्रोटीन हो गया उसमें फिजिकल चेंज हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा उसको गर्म कर दिए, ठीक है, या उसमें थोड़ा सा ऐसे करते हैं दही वही बनाना हो तो नींबू वगैरह या किस चीज को डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. सो दैट इज डीनेचुरेशन. सो ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड व्हाट इज डीनेचर्ड प्रोटीन. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है और डीनेचर्ड प्रोटीन क्या होता है. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज द प्रोसेस and denatured protein means the protein which change its structure and lose its biological activity. So what is denaturation of protein? When any native protein is subjected to physical change or chemical change like temperature or pH, then it change its structure एंड लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी. तब ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो काम उसका था वो काम इसका खत्म हो जाता है. प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन व्हिच फॉर्म आफ्टर दिस चेंज दैट इज कॉल्ड डीनेचर्ड प्रोटीन व्हिच लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी. जो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खो देता है दैट इज कॉल्ड डीनेचर्ड प्रोटीन. In denaturation of protein, what is happen, if you will see, the hydrogen bond is going to be disturbed or other bond which are present that is going to be disturbed, and due to disturbance in this hydrogen bond the globules unfold and helix get uncoiled. ठीक, मीन्स आपका क्या होगा, डीनेचुरेशन में 4 डिग्री स्ट्रक्चर से 3rd डिग्री स्ट्रक्चर बनेगा, 3rd डिग्री स्ट्रक्चर से 2nd डिग्री स्ट्रक्चर बनेगा और 2nd डिग्री स्ट्रक्चर से 1st डिग्री स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है, means in denaturation always the higher structure is going to be converted into lower structure. Lower structure is not going to be converted to higher structure. एक सिंपल सा और एग्जांपल देते हैं, शायद आपको ये मालूम भी होगा. जो एग होता है, एग में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है. कहा जाता है कि एग को 3 तरीके से आप ले सकते हैं. एग को कच्चा, मतलब जो उसका कच्चा रॉ फॉर्म है उस फॉर्म में मिल्क में मिलाएं और उसको आप पी लीजिए. दूसरा फॉर्म है उसको बॉयल कर दीजिए. तीसरा फॉर्म है उसका ऑमलेट बना लीजिए. तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन जो मिलता है वो आपका फायदेमंद जो होता है वो कच्चे वाले से होता है, जो आपने मिल्क में मिला के पिया, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है. बॉयल पार्ट आते हैं तो बॉयल पार्ट में प्रोटीन की जो लेवल है थोड़ी कम हो जाती है, और जो ऑमलेट खाते हैं तो उससे तो और भी प्रोटीन कम हो जाता है. रीजन क्या है कि जो कच्चा आपका एग है, रॉ एग है, उसमें जो लिक्विड पार्ट है दैट इज नेटिव प्रोटीन, वो नेचुरल प्रोटीन है. उसी तरह
नेचुरल प्रोटीन एंड दैट इन हमारे ब्लड में सॉल्युबल है, जाकर के हमारे ब्लड में घुस जाएगा एंड दैट विल बी गिव द मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। बट एग जब बॉयल कर दिए सो टू टेम्परेचर इट्स, ठीक है, नेटिव structure is changed and becomes, ठीक है, denatured protein, वो denatured protein हो गया। so it's lose its biological activity, जो इसका फंक्शन था वो फंक्शन अब ये क्या कर चुका है, खत्म कर चुका है, क्योंकि हीट के कारण ये denatured हो गया है। एंड अगर ऑमलेट ले लेंगे so that is more denatured, मतलब उससे तो और भी कम प्रोटीन मिलेगा। सो इन denaturation ऑफ प्रोटीन व्हाट इज हैपन एक्चुअली, denaturation में होता क्या है, द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज चेंज इनटू टर्शियरी, टर्शियरी इज चेंज इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी इज चेंज इनटू प्राइमरी। प्राइमरी से छोटा नहीं होता है कोई, मतलब डीनेचर्ड में विच, अगर ये भी क्वेश्चन हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। डीनेचुरेशन में कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, दैट इज प्राइमरी। क्वार्टरनरी तो चेंज हो जाता है, सेकेंडरी प्राइमरी किसी में आ जाएगा, टर्शियरी चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी प्राइमरी में आ जाएगा, सेकेंडरी चेंज हो जाएगा, प्राइमरी में आ जाएगा, बट प्राइमरी विल नॉट गोइंग टू बी चेंज। प्राइमरी अगर है तो वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। एंड अनदर, अब मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उतना ज्यादा सॉल्युबल। तो अब क्वेश्चन ये है कि आफ्टर बॉइलिंग द एग द लिक्विड पार्ट ऑफ एग बिकम्स कन्वर्ट इनटू सॉलिड पार्ट, व्हाई? जो लिक्विड होता है एग के अंदर, हम उसको बॉयल करते हैं, पानी में रखते हैं, बॉयल करते हैं और वो सॉलिडिफाई हो जाता है। व्हाई? व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड दिस? बिकॉज इन द लिक्विड फॉर्म द protein which is present in egg, that is in degree structure, that is quaternary structure of protein, native protein, and when we provide a temperature start to boil it, then it undergo denaturation, undergo uncoiling, unfolding, and its quaternary structure is going to be changed into second, tertiary, tertiary, secondary, secondary से primary, and primary structure, in primary structure of protein it becomes solid form. so इसलिए जो एक बॉयल एग होता है वो किस फॉर्म में हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। फिर क्वेश्चन पूछता है वेयर द वाटर बिकम्स रिमूव्ड ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ एग। जो उसके एग के अंदर, हम बाहर के वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, जो उसके अंदर एग के अंदर जो लिक्विड था, उस लिक्विड में कुछ वाटर पार्टिकल्स भी होंगे, तो वो लिक्विड पार्ट सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको बताना है ड्यूरिंग अनकॉइलिंग, अनकॉइलिंग के समय, ठीक है, अनकॉइलिंग के समय मीन्स ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन के समय दैट वाटर पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब by that solid proteins which are formed by denaturation। उस solid protein के बनने में denaturation में solidification होता है, उसमें वो वाटर, जो थोड़े बहुत वाटर पार्टिकल होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, and that's why it becomes solid। solid पूछेगा तो आपको बताना है इसका डिग्री चेंज हो जाता है, और ये क्वेश्चन पूछता है, देखिए ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी रिमेन इंटैक्ट, सेकेंडरी टर्शियरी डिस्ट्रॉय होता है, प्राइमरी कोई चेंज नहीं होता है। कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग, वही कह रहा है कि एग वाइट आपका बॉयल होता है तो वो कोगुलेट हो जाता है, क्यों? that is denaturation, and milk formation, that is denaturation। so यहाँ पे हमारा प्रोटीन कंप्लीट हो गया। so प्रोटीन में आज हमने पढ़ा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, शेप के बेसिस पे कितने टाइप, शेप के बेसिस पे फाइब्रस ग्लोबुलर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, किसमें कौन कौन सा बॉन्ड होता है, and next one some questions were there, then after native protein, denaturation of protein, denatured protein, and example of denaturation of protein। so now